Yeah, hi guys. So let's look at this next question here. Again, a very good question, a high quality question. Can put a star mark here in this also. Take in your notes. The question says that equation x4 x raised to 4 equal to px cube plus qx square plus rx plus 909 has exactly three distinct integral roots. If p, q and r are real numbers, find the largest value of q. See, there are two, three things which we want to interpret from here. Okay, the first is, first let's write in this form actually. Okay, so I know that x raised to 4, if I write like this, so minus px cube minus qx square minus rx minus 909 equal to 0. That's my equation. And I know the original 4-degree equation. What is the original 4-degree equation, guys? You remember? So any equation, we have any equation here. For example, let me write here. Okay, so I'll just explain this here. So my original 4-degree equation for with 4 roots is what? So we had that equation where we studied this, no? X cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. Let the roots by alpha, beta, gamma and delta are the roots here. Okay, so basically, for example, if x equal to alpha is the roots of equation, that means x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into x minus delta all will be 0, because x equal to alpha is the root. That means x minus alpha is the factor of the equation. Same goes with x minus beta and x minus gamma, like that. Okay, so now what you get after solving this, that was the equation talking about, that original equation 4-degree. X raised to 4 minus, then sum of roots taken one at a time, if you remember. Okay, so that is x cube. This is sum of roots taken one at a time. Sum of roots taken one at a time, like that. Okay, then you get minus, after minus you get plus sign. Then it is alpha beta plus beta gamma plus alpha delta plus alpha gamma plus beta gamma and plus gamma delta, and then we get is into x square. This is sum of roots taken 2 at a time. So it goes like this, no? This is sum of roots taken 2 at a time. Sum of roots taken 2 at a time. Okay, so and it goes like that. Okay, so basically after minus sign, then plus sign, then after plus sign minus sign, it goes like that, right? So same way here also. So basically, if you remember this, so same thing we had here also actually. So if I make this here, so x4 minus px cube है ना. So now I can say that let's talk about the roots here. Okay, if I talk about the roots here, तो देखो रूट्स क्या होगा आपका यहाँ पे. तो आपको पता है कि यहाँ पे ए बी सी डी आपके रूट्स हैं. सॉरी, कुछ रूट्स मान लेते हैं. लेट्स से द रूट्स हियर आर ए बी सी एंड डी. राइट नाउ आर द रूट्स, बट इट सेज दैट इट हैज ओनली 3 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स. मतलब बट यहाँ पे x की पावर 4 है, तो अगर x की पावर 4 है मतलब यहाँ पे पक्का 4 रूट्स होंगे, है ना. सो विल हैव एक्चुअली 4 रूट्स हियर. ओके, नाउ 4 रूट्स कहने का मतलब है कि इफ देयर आर 4 रूट्स हियर, देन व्हाट आई कैन से नेक्स्ट इज 3 integral roots हैं. That means I can't have any imaginary roots here. We will have no imaginary roots. ठीक है, because if you remember that Descartes equation, Descartes अपना equation क्या था? It says that कि जितना sign changes होगा fx में coupled with imaginary roots, ठीक है, that is equal to total maximum number of positive roots actually. बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं ना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी 3 इंटीग्रल रूट है. तो टोटल 4 रूट होने, 3 इंटीग्रल रूट है, तो इमेजिनरी रूट का तो कोई सवाल नहीं उठता. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इमेजिनरी रूट हियर, बिकॉज इफ इमेजिनरी रूट विल अकर दे विल बी इन पेयर्स. तो ऑलरेडी 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. एक पेयर अगर इमेजिनरी रूट होगा, टोटल 5 रूट हो जाएंगे, बट यहाँ तो सिर्फ 4 ही रूट है, पावर 4 है. दैट बेसिकली मीन्स दैट that means all the 4 roots will be integral only. ठीक है, all the 4 roots will be rational and integral. So basically अब यहाँ पे second point क्या है कि 3 distinct integral roots हैं. So that means the roots has to be like this, a b and c, है ना. तो यही है 3 distinct, दो मीन्स क्योंकि टोटल 4 रूट है, और अगर उसमें कोई imaginary रूट नहीं है, that means 3 distinct integral रूट होंगे. That means any one root will be occurring 2 times and then b and c. So A, B, C are 3 distinct integral roots, but total 4 root होने हैं. That means 2 roots will be equal actually. ठीक है, these are 3 distinct integral roots. तो ये कहने का मतलब था क्वेश्चन का. ओके, सो अब मुझे ये क्या पता है, what I know that what is P here? P will be sum of roots taken one at a time, है ना. मेरे को Q भी देखना होगा. What is Q?
Q इज सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो Q क्या है आपका? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो लेट्स चेक Q गाइस. देखो Q लेते हैं यहाँ पे. सो Q इज सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. ओके, तो लेट्स कैलकुलेट 2 हियर. सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. अब देखो जब हम यहाँ पे Q कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो बेसिकली हमारा Q क्या होगा? सो Q इज बेसिकली A इंटू ए. तो आप सोचोगे ठीक है, एक बार सम ऑफ आपको दो का लेना है पेयर ना. सो A इंटू ए प्लस A इंटू बी प्लस A इंटू सी प्लस अगेन this was this way, again this A into B. Okay, then again A into C plus B into C. Okay, तो टोटल यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे 6 टर्म्स लिखेंगे ना, अगर 4 डिस्टिंक्ट होते तो. अब ये क्या है आपका? नाउ दिस इज ए बी एंड ए बी इज सेम. ओके, सॉरी लास्ट टर्म ए इंटू बी ए इंटू सी ए इंटू बी ए इंटू सी. लास्ट टर्म इज बी इंटू सी, करेक्ट. ओके, so now we'll have this first term is basically a is square. Now AB and AB combines to make it 2AB. AC and AC combines to make it 2AC, है ना? And then it is 1BC here. This is 1BC. B into C. So like that. This is the Q का value. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? So I want to find the maximum largest value of Q. So now this value I need to maximize. That is my aim here. तो इसके लिए कुछ numbers दिए होंगे ना. देखो number क्या है? That's number 909 here. If you remember, last term क्या होता है याद है ना? Sum of roots taken one at a time is the first x cube coefficient. Sum of roots taken two at a time x square coefficient. ठीक है. ऑल्सो आपको यहाँ पे साइन का देखना पड़ेगा. तो आपको पता है कि ऑरिजिनल इक्वेशन में साइन कैसा होता है. यहाँ पे आपका होता है प्लस साइन, फिर आपका होता है माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन. देखो यहाँ पे ऐसे ही होगा. इट विल लाइक तुम्हारा क्या होगा यहाँ साइन कैसे होगा? इट विल बी प्लस साइन देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस. तो यहाँ पे Q का यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ प्लस है. टू कंपेंसेट दैट यू नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन ऑल्सो. तो आपको यहाँ पे माइनस साइन पुट करना पड़ेगा ना. यू नीड टू पुट अ माइनस साइन हियर. ठीक है, दैट विल बी लाइक दिस इज वैल्यू फॉर दिस इज विद नेगेटिव साइन. ओके, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे. तो ये आपका विथ नेगेटिव साइन है. ठीक है ना. दिस इज नेगेटिव, आई जस्ट मेंशन दिस इज नेगेटिव साइन हियर. ओके, तो दिस इज Q का वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है देखो, व्हाट इज लास्ट टर्म? तो वही मैं बोलता P इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, Q इज सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, R इज सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, और लास्ट टर्म क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है. दैट इज इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे 909 है, बट वही है जैसे आपका यहाँ पे माइनस है और आपका यहाँ पे क्या होता है? प्लस साइन होता है ओरिजिनल में. तो टू कंपेंसेट दैट हम और माइनस साइन पुट करेंगे ना. तो देखो वो हमारा क्या होगा? दैट इज -9. तो हम वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, that is A into B into C is equal to -909 होगा. It is -909, right? अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना. सो नाउ व्हाट यू नीड इज कि आपको ना यहाँ पे आपको अंदर में क्या करना है? निगेटिव वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. क्यों? देखो आपको ना ओवरऑल क्या करना था? आपको यहाँ पे ओवरऑल आपको Q की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना था, राइट? देखो Q क्या था आपका? सो Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AC प्लस BC. हाँ, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है इसको आपको. सो नाउ दिस ये आपका Q का वैल्यू है ना. यू नोट द माइनस साइन है, राइट? आपको ना इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है. यू टू मैक्सिमाइज दिस Q वैल्यू. देखो ये कैसे मैक्सिमाइज होगा? सो बेसिकली होना क्या चाहिए? इट इज ऑलरेडी नेगेटिव साइन हियर, है ना. तो अंदर में क्या आप क्या करोगे? सो इनसाइड द ब्रैकेट यू शुड गेट सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, है ना. मतलब मैग्नीट्यूड आप हायर हो, सच दैट क्या हो लास्ट में कि नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो नेगेटिव और नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाए एंड दैट हायर वैल्यू रिमेन्स. तो आपको ओवरऑल Q को मैक्सिमाइज करना है. दैट मीन्स मैक्सिमम मीन्स Q की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. हाँ, अब ट्राई करके वैल्यू पॉजिटिव हो तो ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव. हाँ, सो दैट टू गेट दी मैक्सिमम वैल्यू. अब बट यहाँ बाहर माइनस साइन है, तो मेरा तरीका क्या है मैक्सिमाइज करने का? मैं अंदर में नेगेटिव को मैक्सिमाइज करूँ. तो मैं अगर ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव को मैक्सिमाइज करूंगा, इफ आई मैक्सिमाइज दी नेगेटिव पार्ट इनसाइड द ब्रैकेट एक्चुअली, तो व्हाट विल हैपन? सो इन दैट केस नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड आई विल गेट सम हायर वैल्यू. ओके, सम हायर वैल्यू, राइट? सो हाउ टू पुट दोज वैल्यूज हियर? ठीक है, देखना आप यहाँ पे. सो आई नो दैट A इंटू A और B और C बचा हुआ है आपको. दिस इज अ वैल्यू हियर, राइट? ओके. नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दी फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज कैसे करना ऑब्जर्व करना, ठीक है ना. सो फॉर एग्जाम्पल आपका 909 था. व्हाट इज 909? तो 909 इज बेसिकली 101 into 9, है ना.
एंड 101 क्या है, तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, राइट? ओके, सो व्हाट आई कैन थिंक नाउ, आई कैन थिंक ऑफ अ केस हियर, लेट्स ट्राई टू पुट दिस एज, अब मेरे को निगेटिव को मैक्सिमाइज करना है, तो आई ट्राई टू पुट, मैं बी और सी को नेगेटिव वैल्यू दूंगा, क्योंकि अगर मैं ए को नेगेटिव दूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, है ना? बट मेरे को क्या करना है, मेरे को अंदर में नेगेटिव वैल्यू चाहिए. ओके, सो व्हाट आई ट्राई टू पुट बी और सी एज नेगेटिव. अगर मैं सी को नेगेटिव का हायर वैल्यू रखता हूँ, तो व्हाट आई कैन पुट कैन आई पुट -909? नहीं, तो सी को आई कांट पुट -909, बिकॉज ये क्या होगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा ना, एंड इट वोंट बी पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट है. ओके, so now what next factor of 909 I can put here? I can put C as -303. अगर मैं C को -303 पुट करता हूँ, ठीक है, if I put C as -303, so फिर what I can put B here, तो मैं B को यहाँ पे I can put B as kind of 3 पुट कर सकता हूँ, so I can put B as 3, okay, and I can put A as 1, this is 1 and 1 actually. ये एक केस सोच सकते हैं, राइट? और भी कुछ सोच सकते हो आप बोलोगे ठीक है, अगर मैं इसको -303 रखता हूँ, so I can think here is that ये -303 है ना? So what other case I can put here? तो और तो कोई नहीं दिख रहा है वैल्यू आपको, ठीक है, आप यहाँ पे इसको आपको हायर को मैक्सिमाइज करना था, तो अगर आप फिर बोलोगे कि मैं C को -101 रखूंगा, दैट डजेंट मेक एनी सेंस एक्चुअली. क्यों नहीं? बिकॉज -101 से तो ज़्यादा नेगेटिव -303 है ना, सो दैट विल हैव मोर हायर मैग्नीट्यूड हियर, राइट? सो लेट्स ट्राई टू पुट दिस कॉम्बिनेशन, और तो कोई वर्क करेगा नहीं. ओके, तो देखो अगर मैं ये रखने का यहाँ पे ट्राई करूँ, सो नाउ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम हियर. देखो Q क्या हो गया, विथ माइनस साइन, A स्क्वायर इज 1 बिकॉज A इज 1 हियर, B is 3, so 2 into 1 into 3, plus 2 into A into C, so 2 into 1 into -303, है ना, and then plus BC. What is BC here? So B is तुम्हारा 3 into -303, so again I'll put 3 into -303. If I solve it guys, देखो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 plus 6 is 7 plus -606, है ना, और -909, that is -15 plus 7 is -1508, and minus gets cancelled, that becomes 1508. So 1508 is the answer for this question. Okay, that's how it goes, right? अब देखो यहाँ बोलोगे सर अपना B और C को एक्सचेंज कर सकते हो, मैं बोलूँगा कर सकते हो, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सेम ही है ना, यहाँ पे B और C, एक बार यहाँ पे 2AC है 2AB है, तो B और C को एक्सचेंज करने कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट रिमेन्स सेम, राइट? सो 1508 is the maximum value possible for Q. Okay, that's the logic. So many logics in it, so many logic and small concepts behind this problem, right? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है. सो एंड यू एक्चुअली थिंक व्हेन यू गेट सम न्यू क्वेश्चन इन एग्जाम, इन योर मॉक्स और योर कैट, तो योर माइंड कैन थिंक, क्योंकि आपने पहले ही माइंड का लेवल आपने अच्छा इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है. सो इसमें कुछ बहुत ऐसा हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट 3 रूट्स 4 रूट जो हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक है. बट उसी को थोड़ा सा अगर आप पुट दैट नंबर्स लॉजिकली, ठीक है, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड इट गाइस. ओके, थैंक यू. हाय गाइस, सो अभी एक ऑफर चल रहा है, ठीक है, 20% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो राइट नाउ एक्चुअली आई वांटेड टू टेल दैट लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन free classes at Unacademy, in those special classes. मुझे टेलीग्राम मैसेज भी किया है, ठीक है. सो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आर टेलिंग मी कि एक बार बहुत लोगों ने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है बाई सेल्फ स्टडी और बाई रोधा और बाई सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट, ठीक है. तो एक बार वो पूरा क्वांट एंड एलआरडी पढ़ना चाहते हैं मुझसे. सो बेसिकली ये मैं लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, तो दिस ईयर व्हाट आई एम डूइंग इज, सो आई एम बेसिकली चेंज माई स्ट्रैटेजी. ओके, दिस ईयर तो मैंने डिसाइड किया है कि आफ्टर दिस जून 30th, ओके, 5th जुलाई ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग माई कोर्सेज. एक बार मैं पूरा क्वांट लूंगा 2.5-3 महीने में, ठीक है. सो इन 2.5-3 months आई विल बी टेकिंग फुल क्वांट लाइव विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है. तो देखो, एक तो आपको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तो ऑल रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है. तो ऑल रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल है. आप अपने जो मैंने अभी तक कोर्सेज लिए हैं, आप उसको अपने कन्वीनियंस से सारा देख सकते हो, ठीक है. सेकंड थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ लाइव क्लासेस. तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, एंड आई विल फिनिश दैट इन ऑल 2.5-3 months. मैं एक बार पूरा क्वांट खत्म कर दूंगा, ठीक है. आई विल कम टू एलआरडी ऑल्सो. तो बेसिकली क्वांट मैंने क्या प्लान किया है, सो इन क्वांट फ्रॉम 7:30 AM ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग अलजेब्रा, ठीक है. एंड इसमें मैं
I'll be taking more than 350 plus questions in this course, ठीक है, एंड विल बी टेकिंग इन अराउंड 30 क्लासेस के अराउंड में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ओके, विथ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ओके, जस्ट दैट कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम कम दूंगा क्लास में, तो हम लोग क्लासेस की लेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने ओल्ड सेशंस अलजेब्रा किए हैं, आई हैव टेकन सम मोर देन 40-45 सेशंस, बट उसमें भी इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसमें इनफैक्ट विल ऐड द क्वेश्चंस एंड विल रिड्यूस द टाइमिंग, थोड़ा सा फास्ट पेस्ड कोर्स होगा, सीइंग कैट 2022, बट या एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, बट या द मोर फोकस विल बी टुवर्ड्स द प्रैक्टिस इन अलजेब्रा। देन अभी मैं 5 जुलाई से ही, फ्रॉम 5 जुलाई ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होगा, फिर 5 जुलाई से ही मैं 10 PM के बैच में भी स्टार्ट कर रहा हूँ PNC प्रोबेबिलिटी। तो एक बार PNC प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ लेंगे अलॉन्ग विद बाइनोमियल थ्योरम, ओके, एंड ये जो कोर्स है आपका ये जुलाई एंड में खत्म हो जाएगा PNC प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग जुलाई एंड में वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ अरिथमेटिक। मैं एक फुल फ्लेश्ड कोर्स लूँगा अरिथमेटिक का विथ 300 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, अगेन पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है, बट क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी इस कोर्स में, ओके। एंड सिमिलरली जब मैं 7:30 AM का जो ये कोर्स है, जब ये मेरा अगस्त में ख़त्म होगा, तो इसमें हम लोग 7:30 AM पे हम लोग इसमें नंबर्स कर लेंगे, ओके, सो विल डू द नंबर्स हियर, नंबर सिस्टम वंस, ओके, एंड उसके बाद हम ज्योमेट्री भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अगले 2.5-3 मंथ्स में आई बी टेकिंग फुल क्वांट विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, काफ़ी न्यू क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली दिस विल बी बेसिकली ये जो आपका एम होगा, द ओनली एम इज टू गेट दैट 99 प्लस, ओके, 99.5 प्लस इन क्वांट। तो 99.5 प्लस मेरे को चाहिए क्वांट में, एंड आई थिंक मोर देन 70-60 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर have gone into different IIMs, different IITs and top 20 colleges. So I want that result this year also. थोड़ा उसको और पुश करते हैं and let's do it. Okay, ये this is about quant. Okay, इसके बाद जब ये पूरा सिलेबस आपका एक बार खत्म हो जाएगा, तो then in October and November, ठीक है, we'll be doing booster courses. हम लोग यहाँ पे booster courses करेंगे। तो बूस्टर कोर्सेज करने का मतलब है कि विल डू अगेन, ये इन कोर्सेज के अलावा विल बी डूइंग न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इस कोर्स में हम लोग न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एंड लाइक विल डू लाइक दिस क्लासेस विल डू, जो मॉर्निंग का बैच है इट विल रन अराउंड 3 to 4 days a week, जो रात वाला बैच है 10 PM का इट विल रन अराउंड 4 to 5 days a week, ठीक है। और तो थोड़ा नंबर क्लास ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, राइट, जब आपको जब कम टाइम पूरा खत्म करना है। तो सिमिलरली 3 days a week करके हम LRDI भी करेंगे। तो देखो LRDI थोड़ा आपको काम खुद से भी करना पड़ेगा। LRDI में मैंने क्या किया है कि हम लोग 500 सेट्स का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइव सॉल्व करने का। अराउंड 250 सेट्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। दीज 250 सेट्स ऑल रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है, ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास, ओके। तो इसको आप 3 to 4 सेट्स के रेट से 3 to 4 सेट्स पर डे करके आप इसको पूरा फिनिश कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अभी जुलाई से लेकर नवंबर तक विल बी डूइंग सम 200-250 सेट्स मोर अलॉन्ग विथ असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये हम लोग इतने और करेंगे प्रैक्टिस कोर्सेज में, प्रैक्टिस कोर्स प्लस जो मैं तुमको बूस्टर कोर्स बता रहा था, ये क्वांट और LRDI के लिए भी होगा, ठीक है। सो एंड दिस विल बी बेसिकली विल बी एंडिंग कैट ऑन दिस, ओके। सो इतने ये मेरा प्लानिंग है बेसिकली, एंड दिस प्लानिंग हैज़ बीन मेड बेसिकली, ये मैंने लास्ट ईयर नहीं लिया था, ठीक है। तो दिस ईयर ओनली बिकॉज ऑफ वेरी हाई डिमांड ऑफ पीपल कमिंग इन स्पेशल क्लासेज एंड फ्री क्लासेज में, ठीक है। तो मैं इतने सारे बैचेस ले रहा हूँ अलग अलग। तो इसी के लिए अगर आपको यूटिलाइज करना है तो ये आपका 20% ऑफ है सब्सक्रिप्शन पे। ये मंथ में एक बार आता है, ठीक है, रफली मंथ एंड में आता है ये जून 27 to 30 का ऑफर है, ओके। सो फ्रॉम जून 27 to 30 दिस ऑफर इज देयर। आप 30th तक ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर स्पेशली 6 months इफ यू वांट, ओके, एंड यू नीड टू पे दिस मच फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट इसमें विल डू ऑल दिस, आपके पास पूरे इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अराउंड 24 मॉक्स हैं। सो 24 मॉक्स रहेंगे, 24 न्यू मॉक्स रहेंगे। उसके अलावा इट्स अराउंड 73 सेक्शनल टेस्ट्स हैं, ओके, फॉर यू गाइज दिस ईयर। उसके अलावा हमारे अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन में, जो कि मैंने बहुत एक्सक्लूसिवली बिल्ड करवाया है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हैं। इट कंटेन्स सम लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशन। सो ईच चैप्टर में क्या होता है, यू कैन सेलेक्ट अ चैप्टर, आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन एक्चुअली
उस चैप्टर को सिलेक्ट करके आप उस चैप्टर पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिक कर सकते हो, एंड नंबर्स पिक करने के बाद आप उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स फॉर एग्जांपल अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, ओके, सो इफ आई वांट टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, देखो मैं क्या करूँगा, सो माई स्ट्रैटेजी विल बी वेल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, ठीक है। तो मैं अनअकैडमी प्रैक्टिस सेशन पे जाऊँगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सेलेक्ट करूँगा, एंड आई विल पिक, मेरे पास ऑप्शन होगा पिक करने का 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। तो मैंने 40 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पिक किया, तो 40 क्वेश्चंस मेरे सामने 1 by 1 आएगा, एंड टू प्रैक्टिस ऑल दोस 40 क्वेश्चन। वो मिक्सचर होगा लेवल 1 का, 2 का और 3 का। तो ऐसे करके आपके पास हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। तो कोई बुक, ठीक है, नो बुक इज रिक्वायर्ड टू फॉर यू टू स्टडी, आप आराम से बिल्कुल इसको 1 by 1 खत्म कर सकते हो, ठीक है। दैट्स प्लानिंग वी आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू दैट, लास्ट का 5 months है, ओके। सो लेट्स रॉक इट, एंड इन दिस 5-6 months आफ्टर दैट, उसके बाद जैट की भी कोर्स करेंगे, डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। आई विल प्रिपेयर यू गाइज फॉर वैट एंड GDPI ऑल्सो, ठीक है। बहुत मैंने इस बार प्रिपेयर करा है, बहुत लोगों को बहुत बैचेस गए हैं, ठीक है। सो विल डू दिस टाइम ऑल्सो दैट ऑल थिंग्स वी गो, सो वी स्टे कनेक्टेड, सो विल बी बेसिकली so we'll meet daily for around we'll meet daily for at least 4 hours, ठीक है, कम से कम 4 hours डेली मिलेंगे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। we'll have lots of classes, lots of practice sessions, we have fun in our classes, roasting, ठीक है, all goes on। along with that मैं आपको will prepare for all these exams like CAT, ZAT, फिर ZAT के हम लोग पढ़ेंगे decision making, which is again a very flagship course। बहुत लोग उसमें ऑनलाइन रहते हैं दिसंबर के टाइम में, एंड वी स्टडी अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग केस लेट्स वी डू विद दिस, डिस्कस क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग 98+ in decision making section in last 2 years, okay। and basically we'll be staying connected, we'll be stay connected for next around at least 8 to 10 months minimum, ठीक है। ये आपके साइड से, if you want you have option of choosing out, okay, but मेरे I'll be staying connected always। अभी भी क्या आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं IIMs में एंड IITs में, RC Monji में, they come to Bangalore, they meet me, okay, I meet with them, so basically we always stay connected, okay। so that's how it goes। तो इसलिए इफ़ यू एनी ऑफ यू वांट टू इनरोल टू दिस एंड यूज़ दिस 20% एडवांटेज, तो आप ले सकते हो। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड रवि रोधा हियर, ठीक है। वो जब आप लोगे तो वहाँ पर रवि रोधा वहाँ पे रेफरल कोड मांगते हैं, सो डिस्काउंट मिलता है 20% का, सो दैट विल हैव फ्लैट 20% ऑफ, ओके, टिल 30th of June at night 12, okay। So thank you guys, see you then again, thank you।